Good morning, students. In previous lecture, we completed the filling the blanks, true, false, choose the correct options. Now we are going to start one sentence answer of this chapter. First question in one sentence is, what do you mean by water source? What do you mean by water source? A place that provides us water is known as water source. A place that provides us water is known as water source. Now, what sources of water do we have? कौन कौन से sources of water हैं? रेन है, ponds है, लेक्स है, रिवर्स हैं, वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, आर अवर सोर्सेज ऑफ अ वाटर. ये हमारे सोर्सेज हैं वाटर के. What do you mean by water source? A place that provides us water is known as water source. What sources of water do we have? Rain, ponds, lakes, rivers, and wells. Tubewells are sources of water. Now, third one. What sources provide us with groundwater? What sources provide us with groundwater? Open wells, tube wells, hand pumps are sources that provide us with groundwater. What sources provide us with groundwater? Open wells, tube wells, and hand pumps are sources that provide us with groundwater. Next, from where does the dam get water? A dam get water from river and rain. A dam get water, river and rain. Now, what is a cloud? What is a cloud? The water vapor in the air condenses to form tiny droplets of water. The water vapor in the air condenses to form tiny droplets of water. The collection of these droplets is known as cloud. The water vapor in the air condenses to form tiny droplets of water. The collection of these droplets is known as cloud. Okay. Now, next, sixth one. When does a cloud rain? When does a cloud rain? On cooling clouds, droplets of water form large sized drops of water. On cooling clouds, droplets of water form large size drops of water and they begin to fall as rain. And they begin to fall as rain. On cooling clouds, droplets of water form large size drops of water and they begins to fall as rain. Right? Next, 3-4 sentence. How are clouds formed? Evaporation takes place from all open surfaces of water. As a result, water vapor gets continuously added to the air. As a result, water vapor gets continuously added to the air as these vapor go higher from the surface of the earth. As these vapors go higher from the surface of the earth, it becomes cooler and cooler. Okay, at sufficient height, the air becomes so cool that the water vapor present in condense to form tiny droplets of water called droplets. पहले इवेपोरेशन होता है, ठीक है, सारा जो भी ओपन सर्फेस से वाटर कलेक्ट होता है, फिर वाटर वेपर गेट कंटिन्यूसली एडेड टू द एयर, एयर के साथ ऐड होता रहता है एज दिस वेपर गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, बहुत दूर चले जाते हैं अर्थ से, जिसके कारण वहाँ कूल ठंडे होते रहते हैं. एट सफिशेंट हाइट the air becomes so cool so that the water vapor present condense to form tiny droplets of water called droplets. इसके कारण वो वाटर वेपर क्या है, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर की ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. इट इज़ दिस tiny droplets that remain floating in air and appears to us as clouds, जिसके कारण हमें वो क्लाउड फॉर्म में दिखने शुरू
हो जाते हैं। क्लियर? पहले इवेपोरेशन होता है, फिर वाटर ऊपर जाता है, सारे ये ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो कंडेंसेशन का प्रोसेस करते हैं, जिसके कारण क्या हो जाते हैं, क्लाउड फॉर्म होते हैं और फिर बारिश होनी शुरू हो जाती है। ओके, व्हेन डज अ ड्रॉट अकर? अब ड्रॉट कब आते हैं? इफ इट डज नॉट रेन इन द रीजन ऑफ अ ईयर और मोर, द कंडीशन इज कॉल्ड अ ड्रॉट। अब कई जगह पे बहुत टाइम तक बारिश नहीं होती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, सूखा हो जाता है। ठीक है, कितनी देर तक बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा, इसलिए वो ड्रॉट की कंडीशन होती है। द लेवल ऑफ वाटर इन पोन्ड्स एंड वेल्स ऑफ द रीजन गोज डाउन एंड सम ऑफ देम में इवन ड्राई अप। कुछ पे पोन्ड्स और वेल्स क्या हो जाते हैं, जो वाटर का लेवल है वो डाउन हो जाता है और कुछ ड्राई अप हो जाते हैं। ड्यू टू दिस द क्रॉप कैन नॉट ग्रो इन द फील्ड्स। क्रॉप भी ग्रो नहीं होती फील्ड्स में। द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्कार्स। जो ग्राउंड वाटर है वो भी ख़त्म हो जाता है, नीचे चला जाता है उसका लेवल। दिस सिचुएशन में लीड टू ड्रॉट, जिसके कारण ये सिचुएशन क्या हो जाती है, ड्रॉट की होती है। नाउ नेक्स्ट one, from where do the wells or tubewells get water? A part of the rainwater flows on the ground and the rest seeps into the ground. A part of the rainwater flows on the ground and rest seeps into the ground. Most of this water becomes available to us as ground water. कुछ रेन वाटर का वो जो पानी है वो फ्लो करता है और कुछ ग्राउंड में सिप हो जाता है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम्स अवेलेबल टू अस एज अ ग्राउंड वाटर। ओके, ओपन वेल्स आर फेड अप बाय ग्राउंड वाटर। इट इज़ दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रॉन बाय हैंड पम्प्स और अ ट्यूबवेल्स। जो ये पानी बाहर निकालते हैं एज अ ग्राउंड वाटर, वो कहाँ से, हैंड पम्प से और ट्यूबवेल से निकाला जाता है। नाउ डिटेल क्वेश्चंस। स्टेट द डैमेजेस कॉज्ड बाय हैवी रेन। कौन कौन से डैमेजेस होते हैं? हैवी रेन्स में लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। द वाटर में देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज कॉजिंग फ्लड्स। जो वाटर है वो लार्ज एरिया में स्प्रेड हो जाता है, जिसके कारण फ्लड का कॉज होता है। द क्रॉप फील्ड, फॉरेस्ट विलेजेस एंड द सिटीज may get submerged by water. ओके, जिसके कारण वो पानी से भर सकते हैं। फॉरेस्ट है, विलेज है, सिटीज़ हैं। फ्लड कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। इनका बहुत डैमेज होता है। ड्यूरिंग फ्लड्स द एनिमल्स लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरिड अवे विद द वाटर। जो फ्लड्स के टाइम जो एनिमल्स वाटर में ही रहते हैं वो वाटर से बाहर भी आ जाते हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं लैंड पर आकर। दे ऑफन गेट ट्रैप्ड ऑन लैंड एरिया एंड डाई। ओके, सो व्हेन फ्लड वाटर रिसीड्स, जब फ्लड वाटर आता है तो वो क्या हो जाते हैं, लैंड एरिया पे आके ट्रैप हो जाते हैं और मर जाते हैं। रेन्स ऑल्सो अफेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल। जो एनिमल्स सॉइल में रहते हैं उसको भी अफेक्शन होता है, वो भी अफेक्ट होते हैं। ओके, ना सेकेंड वन, व्हाट विल हैपन इफ़ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अब जो लॉन्ग पीरियड में रेन नहीं होती, क्या हो जाता है, ड्रॉट की सिचुएशन हो जाती है, सॉइल ड्राई हो जाती है। ठीक है, जो वाटर लेवल है डाउन हो जाता है, पोन्ड्स रिवर्स में ड्राई हो जाते हैं, ह्यूमन्स के पास पीने के लिए सफिशेंट वाटर ही नहीं रहता, क्रॉप्स और वेजिटेशन भी ड्राई हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड फूडर। एनिमल्स वुड बी डाई टू लैक ऑफ वाटर एंड फूडर। फार्मर्स वुड बी डेप्ट रिडन। फार्मर्स क्या हो जाते हैं, कर्जे में दब जाते हैं। इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज गेट अफेक्टेड। एवरीथिंग वुड बिकम कॉस्टली। द इकॉनमी ऑफ द होल कंट्री में गेट अफेक्टेड। ओके, तो सारी कंट्री की इकॉनमी भी अफेक्ट करती है। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता, क्रॉप और वेजिटेशन अच्छे ड्राई हो जाती हैं, फूड की कमी हो जाती है, फूडर की कमी हो जाती है, जो एनिमल्स को चारा देना होता है। फार्मर्स डेप्ट रिडन हो जाते हैं। तो ये तो खुद भी तुम लिख सकते हो, राइट। तो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर।
कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर, कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, तो वो कौन सा प्रोसेस होता है? इवेपोरेशन का। लॉस ऑफ वाटर वाटर बाय लीव्स ऑफ प्लांट्स, तो वो ट्रांसपिरेशन होता है। वेल्स में क्या है? ग्राउंड वाटर है। ओके, तो यहाँ पे मेरा ये चैप्टर है फिनिश्ड हो गया है, सारे टॉपिक्स कवर अप हो गए हैं। बहुत स्मॉल सा चैप्टर था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए चैप्टर फिनिश्ड हो गया है। नेक्स्ट में नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे।